So hello students, today we are going to discuss about NEET biology PYQ series. So let's discuss. So first question is based on disorder. So let's discuss emphysema. Emphysema is basically a disease in which alveolar walls of the lungs get damaged, and due to this, respiratory surfaces decrease. This disease is basically caused due to cigarette smoking. Okay, so A second, ये and angina pectoris. This is a disease where a person has acute chest pain due to lower oxygen level, and so this is B third. So fourth option is correct. C, it is due to glomerulonephritis due to glomeruli inflammation of the kidney part. जो किडनी का ग्लोमेरुलस है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाना. एंड टेटनी, रैपिड स्पैम्स इन मसल ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल. So fourth option is correct. We can also discuss various diseases. So renal calculi, it is basically mass or stone store in the crystallized salt form such as oxalate, and this is formed in the kidney, that is renal calculi. Glomerulonephritis, this is the inflammation of glomerulus part of the kidney. Asthma is basically difficulty in breathing, as wheezing is caused due to inflammation of bronchi or bronchioles. जो breathing में problem क्यों आती है, क्योंकि basically जब ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लामेशन हो जाए और उससे सांस में प्रॉब्लम हो, दैट इज अस्थमा. इफ एम्फिस्मा क्या है, alveolar wall get damaged and respiratory surface decrease. This is caused by cigarette smoking. Now Myasthenia gravis, it is an autoimmune disorder, or it is an immunity related disorder affecting neuromuscular junction leading to fatigue, weakening and paralysis of skeletal muscle. जब इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है तो क्या होता है, बेसिकली जो मसल्स है वो वीक हो जाती हैं, फटीग और पैरालिसिस हो जाती है. दैट इज मिस्थेनिया ग्रेविस. मस्कुलर डिस्ट्रोफी, इट इज़ अ डिजनरेशन ऑफ द स्केलेटल मसल ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर. तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है. टेटनी, दिस इज ए बेसिकली रैपिड स्पैम और कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल इन द मसल्स. Arthritis, inflammation of joints. Osteoporosis, it is an age-related disorder caused by decreased bone mass, and fracture chances increased. Generally, this is caused due to decreased level of estrogen. Angina, also called as angina pectoris, acute chest pain occurs when no enough oxygen reaching the heart muscle. जो heart की muscle है उसको जो properly oxygen reach नहीं करती, तब क्या होता है, chest में फिर pain होता है. This is majorly in the middle-aged persons and affecting blood flow. इसमें blood flow में फर्क आता है. Next, this is an assertion reason question. So first assertion is both wind and water pollinator flowers are not very colorful and do not produce nectar. Yes, this is correct. जो wind और water flowers होते हैं, pollinator flowers होते हैं, वो ज़्यादा कलरफुल भी नहीं होते हैं, एंड वो नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करती. ओके, रीज़न दे रही हैं ये, बिकॉज फ्लावर प्रोड्यूस इन numerous amount of pollen grain in the wind and water pollinator flowers. This point is correct but not a reason for assertion. So the option is second. Both are true statements are correct, but R is not the correct explanation of A. क्योंकि कलरफुल नहीं होते उसमें पोलन का कोई लेना देना नहीं है ना, क्योंकि वहाँ एनिमल नहीं है तो वहाँ अट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो कलरफुल नहीं है. ज़्यादातर जैसे है ना बीटल्स हो गए, या फिर है ना डिफरेंट इंसेक्ट या बर्ड्स रिलेटेड फ्लावर्स हैं, वो ज़्यादा कलरफुल हो गए टू अट्रैक्ट देम फॉर पॉलिनेशन, राइट. बट यहाँ विंडर वाटर तो कोई लोड ही नहीं है ज़्यादा कलरफुल या उनको अट्रैक्ट करने लिए या फिर नेक्टर प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि जो बर्ड होगा या फिर बटरफ्लाइज होंगी, है ना, बीटल्स होंगे, तो वो क्या होगा,
बेसिकली वो नेक्टर लेंगे, इसलिए उन टाइप के प्लांट्स को बनाना पड़ेगा नेक्टर, कलरफुल अट्रैक्टिव बनना पड़ेगा। लेकिन विंड और वाटर की तो ज़रूरत ही नहीं है ना वो कलरफुल हो, तो सही है। एंड हाँ ये करते हैं, पोलन ग्रेन इनफ बनाते हैं, क्योंकि यहाँ लॉस का चांसेस ज़्यादा है, विंड के साथ सही जगह पे जाए, वाटर के साथ सही है ना, ज़रूरी नहीं है। तो इनफ, तो ये पोलन ग्रेन अमाउंट ज़्यादा होती है, करेक्ट है, बट इट इज़ नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, सो दैट इज़ राइट। ओके, लेट्स रीड दिस टॉपिक। प्लांट यूज टू एबायोटिक विंड एंड वाटर, ठीक है, एंड बायोटिक एनिमल्स एजेंट्स जो होते हैं पोलिनेशन की, मतलब ये कह रहे हैं अभी दो टाइप के हैं। एक तो एबायोटिक वे है विंड एंड वाटर, क्योंकि लिविंग नहीं है, और बायोटिक एनिमल बेस्ड है, ठीक है। ज़्यादातर प्लांट्स बायोटिक एजेंट के होते हैं, स्मॉल ही है जो एबायोटिक हो। पोलन ग्रेन्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर पोलिनेशन। कहते हैं जो पोलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट आए, वो एक चांस फैक्टर है, क्योंकि सही जगह पे विंड के साथ उड़ के या वाटर के साथ फ्लो के जाए, वे चांस है ना, भी पहुंच भी सकता है, नहीं भी पहुंच सकता। टू compensate for this uncertainty and associated loss of pollen grain, the follower produce similar amount of pollen when compared to number of ovules available for pollination। तो क्या है उनको, है ना, क्योंकि यहाँ चांस फैक्टर है, इस करके इनको लॉस का, पोलन ग्रेन लॉस उनका चांस भी ज़्यादा है, उतना ही है। तो क्या करते हैं फिर, ये पोलन की प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं कंपेयर टू ओव्यूल्स, क्योंकि ओव्यूल्स तो वो अपने पोजीशन पे रहेंगे ना, इसलिए। पोलिनेशन बाय विंड इज़ मोर कॉमन अमंग एबायोटिक। हमारे विंड और वाटर में विंड कहते हैं सबसे ज़्यादा कॉमन है। विंड पोलिनेशन रिक्वायर द पोलन ग्रेन्स आर लाइट, तो इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, विंड पोलिनेशन बेस्ड जो फ्लावर है उनकी रिक्वायरमेंट, एक तो वो लाइट हो, क्योंकि हवा के साथ जा सके, जितने हैवी होंगे उतनी कम डिस्टेंस में जाएंगे, जितने लाइट होंगे उतनी उनका डिस्टेंस ट्रैवल ज़्यादा हो जाएगा, तो लाइट हो। नॉन स्टिकी हो, क्योंकि वो तभी जा पाएंगे ना, अगर स्टिकी होंगे तो उनका जाना पॉसिबल नहीं है। लाइट हो, नॉन स्टिकी हो, सो दैट दे कैन बी कैरिड बाय विंड करंट्स। दे ऑफन पोजेस वेल एक्सपोज्ड स्टेमन एंड लार्ज फैदरी स्टिग्मा, तो इनके स्टेमन भी एक्सपोज हो, बाहर हो। अगर वो फ्लावर के अंदर क्लोज्ड होंगे तो वो विंड कैसे, विंड नहीं लेके जा पाएगा ना। तो फॉर एग्जांपल हिबिस्कस रोज़ है, उसका स्टिग्मा देखो कितना लार्ज होता है ना, वैसे होना चाहिए जो उनका स्टेमन है, सॉरी, वो लार्ज होना चाहिए, एक्सपोज होना चाहिए, वाइल्ड ओपन होना चाहिए, एंड लार्ज फैदरी स्टिग्मा होना चाहिए टू ईजिली ट्रैप एयरबोर्न पोलन ग्रेन, भी जो हल्के लाइट्स पोलन ग्रेन है वो विंड के साथ फ्लो हो जाए, करंट में चले जाए। विंड pollinated flowers often have a single ovule in each ovary and numerous flowers packed into an inflorescence. A familiar example is a corn cob. The ear you see are nothing but the stigma and style which in the wind to trap pollen grain। तो कहते हैं ये कोब है जो उसकी इन्फ्लोरेंस है, वो एग्जाम्पल है। उसके फ्लावर में क्या है, जो विंड टाइप के है उसमें ओव्यूल सिंगल है, लेकिन पोलन्स बहुत ज़्यादा है, जैसे कोब में पाए थे, उसके इन्फ्लोरेंस इस तरह की है। विल पोलिनेशन किस में पाई जाती है, मेजरली ग्रासेस में पाई जाती है। पोलिनेशन बाय वाटर इज़ क्वाइट रेयर, वाटर के साथ कहते हैं रेयर है। इन फ्लावरिंग प्लांट इज़ लिमिटेड टू अबाउट 30 जनरा, और ये 30 जनरा में लिमिटेड पाए जाते हैं। मोस्टली मोनोकोटिलीडन, सो मोनोकोटिलीडन है उसमें वाटर रिलेटेड है, वाटर रेयर है, बट 30 जनरा है जो मोनोकोटिलीडन है उनमें वाटर पाया जाता है। एज अगेंस्ट दिस यू विड रिकॉल दैट वाटर इज़ अ रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मिल्क मीट अमंग दी among the genera mostly monocotyledon, हाँ, among the lower plant groups such as alga, bryophyte, rhodophyte। जैसे हमें पता है ब्रायोफाइट क्या होता है, एम्फीबियंस होते हैं ना, ये मतलब कि ये वाटर से इनका मिल्क मीट ज़्यादा जाता है। तो ये कुछ टाइप है एल्गे, ब्रायोफाइट, रेडोफाइट, जहाँ पे वाटर रिलेटेड पॉलिनेशन होती है। इट इज़ बिलीव दैट पर्टिकुलरली फॉर सम ब्रायोफाइट, रेडोफाइट दैट देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ देयर नीड फॉर वाटर ट्रांसपोर्टेशन। तो ये देख लेना, ठीक है, ये देख लेते हैं हम। बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल, तो क्या होते हैं उनको कलर की ज़रूरत ही नहीं है ना, इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ कोई विंड की आइस तो है नहीं, है ना, भी देख के अट्रैक्ट होगा।
तो वो उनको कलरफुल होने की ज़रूरत नहीं है एंड नेक्टर भी नहीं, क्योंकि वो उनको इंसेक्ट को चाहिए, बायोटिकलेटेड में चाहिए। ठीक है, ये हमारा हो गया। ओके, नाउ विच ऑफ द फ्लोइंग इन एग्जाम्पल ऑफ नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेज प्रोड्यूस बाय ईस्ट? विस्की, बियर, ब्रांडी, रम। तो इसका आंसर है बियर। ओके ओके, लेट्स डिस्कस। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज फॉर फर्मेंटेशन एंड टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, देयर आर टू टाइप्स, विद डिस्टिलेशन एंड विदाउट डिस्टिलेशन। डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर obtained. वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन। तो जो वाइन एंड बियर है ये विदाउट डिस्टिलेशन है। ओके, और जो विस्की, ब्रांडी, रम है ये विद डिस्टिलेशन है ऑफ फर्मेंटेड ब्रोथ। तो ये देख लेना। इसमें बेसिकली क्या होता है ना, जो अल्कोहलिक कंटेंट है वो वाइन बियर में कम होगा, क्योंकि वहाँ डिस्टिलेशन नहीं होती, हीट नहीं होती, तो कम कंसनट्रेटेड रह जाता है। वाइल जो विस्की, ब्रांडी, रम है इसमें डिस्टिलेशन होती है, स्टीम होगा, जिसके अल्कोहल की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो अल्कोहल की कंसनट्रेशन डिस्टिलेशन में ज़्यादा होती है, डिस्टिलेशन प्रोसेस में, जैसे विस्की, ब्रांडी, रम, ये इनमें अल्कोहलिक कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, ओके। नाउ वी हैव another flower formula related question. So in this sign represent the zygomorphic nature of the flower, and this sign represent the inferior ovary. Okay, so this is wrong because zygomorphic का होता है, ये होता है zygomorphic का, राइट, ये इसका फॉर्मूला होता है, और जो inferior ovary है उसका ये होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, ये कहते हैं ये एक्टिनोमॉर्फिक है, राइट, ये एक्टिनोमॉर्फिक का साइन होता है। ठीक है, और जो जी ओवर्स लब है इस तरह का साइन है, ये सुपीरियर ओवरी का है। ठीक है, क्योंकि इन्फीरियर कैसे है, सुपीरियर कैसे है, तो सेकंड स्टेटमेंट तो सही है लेकिन फर्स्ट गलत है, तो फोर्थ ऑप्शन आएगा इसका, मतलब फर्स्ट गलत है ना, क्योंकि जाइगोमॉर्फिक का ये होता है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं हम। जैसे ब्रैक्टिएट का बी आर है होता है, के कैलेक्सी, करोला, पी पेरियांथ, ए एंडोशियम, जी गनोशियम। ठीक है, अब जब हम सुपीरियर ओवरी देखेंगे वो ऐसे होता है, जी के मतलब बिलो होती है अंडरलाइन, और अबव जो हो उसको हम कहते हैं इन्फीरियर ओवरी। ये मेल का साइन है, ये फीमेल का साइन है, ये बायसेक्सुअल है, ये एक्टिनोमॉर्फिक है, एंड दिस इज फॉर जाइगोमॉर्फिक। सो ये साइन है। ओके ओके, स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस इज यूज फॉर। तो ये क्या कर्ड प्रोडक्शन में है, इथेनॉल प्रोडक्शन में है, लीवर डिजीज ट्रीटमेंट में है, या फिर ब्लड क्लॉट को मतलब क्लॉट को रिमूव करता है फ्रॉम ब्लड वेसल। तो इसका ऑप्शन है 4, यस, इट रिमूव क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल। ओके, सो हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं मैं एक बार। यस, microbes are also used for commercial and industrial production of certain chemicals, for example organic acid, alcohol, enzyme। जो कहते हैं मतलब माइक्रोब है ना, वो इंडस्ट्री में स्पेशली यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिक एसिड प्रोडक्शन ਲਈ, अल्कोहल बनाने ਲਈ, ਇੰਜ਼ਾਈਮਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸਿਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਐਸਪਰਜਿਲਸ ਨਾਈਗਰ ਫੰਗਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਟਰਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਟਰਿਕ ਐਸਿਡ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਐਸਪਰਜਿਲਸ ਨਾਈਗਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੰਗਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਸੀਟੋਬੈਕਟਰ ਐਸਟਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਇਹ ਵੀ ਐਸਟਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਿਟਰਿਕ ਐਸਿਡ ਸੀਗਾ, ਐਸਪਰਜਿਲਸ ਨਾਈਗਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫੰਗਸ ਦੀ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਐਸੀਟੋਬੈਕਟਰ ਐਸਟਾਈ ਬੈਕਟੀਰੀਅਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਸਟਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਲੋਸਟ੍ਰੀਡੀਅਮ ਬੁਟਾਈਲਿਕਮ एक बैक्टीरिया है जो कि बुटायरिक एसिड बनाता है। लैक्टोबैसिलस जो एक बैक्टीरिया दैट फॉर्म लैक्टिक एसिड। ओके, ईस्ट दैट इज अ सैक्रोमैकस सर्वेशियाई इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। तो ये कमर्शियली इथेनॉल प्रोडक्शन की मतलब टाइप के लिए यूज़ होता है। माइक्रोब्स आर आल्सो यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। डेफिनेटली माइक्रोब को हम यूज़ करते हैं एंजाइम प्रोडक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल लाइपेज दैट आर यूज इन डिटर्जेंट फार्मूला एंड आर परफॉर्म रिमूवल ऑयली स्टेन फ्रॉम लॉन्ड्री। तो क्या है, लाइपेज है जो एंजाइम है तो उसको बनाया जाता है एंड वो डिटर्जेंट में ऐड किया जाता है टू रिमूव द ऑयली स्टेन,
राइट, जो हम डिटर्जेंट यूज़ करते हैं स्टेन को, ऑयली स्टेन को रिमूव करने के लिए एंजाइम होगा ना, एंजाइम ब्रेक डाउन करोगा तो कौन से है, लाइपेज। ठीक है, यू मस्ट हैव नोटिस दैट बॉटल फ्रूट जूस bought from market are clearer as compared to those made at home because they add the पैक्टिनेसिस एंड प्रोटीएसिस। ये क्या करेगा, जो पैक्टिन है उसको डिग्रेड करेगा या प्रोटीन है उसको डिग्रेड करेगा, जिसके कारण वो क्लियर हो जाते हैं जूस। ठीक है, क्लियर क्यों होते हैं, क्योंकि एंजाइम यूज होती है पैक्टिनेस प्रोटीएसिस। Now we come to streptokinase that are produced by bacterium Streptococcus and it is modified by genetic engineer, also used as clot buster। इसको हम clot buster की तरह यूज़ करते हैं for removing clots from blood vessel of patient who have undergone myocardial infarction leading to heart attack। तो जो ब्लड है ना, ब्लड वेसल्स हैं जो कार्डियक रिलेटेड हैं, वहाँ में से अगर क्लोट रिमूव करना है तो हम ये बैक्टीरिया यूज़ करते हैं, बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस, जिससे एंजाइम होती है स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो इसको हम एज अ क्लोट बस्टर टू रिमूव द क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल्स। तो जो हार्ट अटैक की मतलब प्रॉब्लम हो सकती है उसको प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट के लिए। Another bioactive molecule, for example cyclosporine A, that is used as immunosuppressive agent। क्या करेगा ये, हमारे जो इम्यून है ना उसको सप्रेस करेगा। जैसे हम किडनी ट्रांसप्लांट है राइट, तो हमें फिर क्योंकि हम किसी और की किडनी डालेंगे तो इम्यून एक्टिव होगा, तो उसको सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इम्यूनोसप्रेसिव यूज़ करेंगे, ताकि वो रिएक्ट ना करे, डिफेंस मैकेनिज्म इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्ट ना करे, इसलिए हम साइक्लोस्पोरिन यूज़ करेंगे ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट। और ये कहाँ से आता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मम, दैट इज़ अ फंगस टाइप। ये इम्पोर्टेंट है, कौन सा बैक्टीरिया है कौन सा फंगस है ना, ये अच्छे से देख लेना। जैसे ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मम क्या है, फंगस है। ये मैचिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैचिंग यहाँ से बहुत आती है। ओके, स्टैटिन प्रोड्यूस बाय द ईस्ट मोनास्कस पिपोरस। ये क्या है, स्टैटिन प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। भी किसी पेशेंट में ब्लड कोलेस्ट्रॉल हाई है तो वो इसको स्टैटिन को यूज़ करेगा और अपने लेवल को कम करेगा। तो ये कैसे काम करता है, ये कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करेगा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। जैसे फॉर एग्जांपल किसमें कोलेस्ट्रॉल बन रहा है राइट, तो क्या करेगा वो एंजाइम इससे मतलब जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल बनाएगी उसको इनहिबिट करेगा, बाइंड ही नहीं करने देगा बल्कि खुद वहाँ जाके लग जाएगा और कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को बंद कर देगा। इसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। भी इसके एंजाइम जैसा कुछ आएगा जो कि इनहिबिटर है। ये जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस एंजाइम है वो तो लगती नहीं है, उसकी जगह इनहिबिटर लग जाता है, जिससे सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है और कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ओके, now another question is name the chromosome in the human genome that has the highest number of chromosome। तो कौन सा x है, y है, 10 है, 1 है। तो इसका आंसर है थर्ड, दैट इज़ अ क्रोमोसोम नंबर 1। ओके, हम पढ़ते हैं सेलाइन फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम। इसमें क्या है, जो हमारा बेसिकली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, हमारे जीनोम को पूरा अच्छे तरह डीएनए को सीक्वेंस करने के लिए वो ये प्रोजेक्ट है। इसमें क्या क्या होता है, बेसिकली हमारा जो ह्यूमन जीनोम है उसमें इतने मतलब 3164.7 मिलियन बेस पेयर हैं। जो हमारे एवरेज जीन्स हैं वो 3000 बेसिस के हैं। साइज़ वेरी करेगा राइट। जो हमारा लार्जेस्ट ह्यूमन जीन है वो कौन सी है, डिस्ट्रोफिन है। ये इम्पोर्टेंट है, वे जैसे इन्होंने पूछ लिया ना वैसे पूछ सकते हैं वे हमारे लार्जेस्ट ह्यूमन जीन कौन सी है, डिस्ट्रोफिन है। और ये कहाँ पाई जाती है, 2.4 मिलियन बेसिस में पाई जाती है। द टोटल नंबर ऑफ जीन कितनी है, 30,000 है। दैट इज़ अ लोअर एस्टिमेट। भी पहले हमें मानते थे कि 80,000 टू इतने हैं, 1,40,000 जीन्स हैं। बट रिसेंटली मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के दौरान देखा कि अभी नहीं, जो हमारे नंबर ऑफ जीन है वो अबाउट 30,000 है। और जो हमारे न्यूक्लियोटाइड बेसिस है वो सेम ही रहते हैं ऑलमोस्ट, विद सम वेरिएशन ऑलमोस्ट सेम है। और जो फंक्शंस हैं वो अननोन है 50% का।
जो हमने देखा, जैसे 30,000 जीन्स हैं तो लगभग 15,000 का जो फंक्शन है हमें नहीं पता है, इसका ये मतलब है। ओके, और जो हमारे प्रोटीन्स हैं वो <2% है। रिपीटेड सीक्वेंस क्या है, जो लार्ज पोर्शन में रिपीटेडली बेसिकली पाए जाते हैं, लार्ज पोर्शन बनाते हैं ह्यूमन जीनोम का। ये क्या है, स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए सीक्वेंस दैट आर रिपीटेड मैनी टाइम्स, अबाउट 100 to 1000 times they are repeated, that's why called as repetitive sequence, repeated many times. These are stretches of DNA. They are thought to have no direct coding function. ये क्या है, लार्ज पोर्शन बनाते हैं रेपिटेटिव सीक्वेंस, और ये बेसिकली काफ़ी टाइम रिपीट होते हैं, बट ये नॉन कोडिंग होते हैं। ओके, दे आर नॉन कोडिंग, ज़्यादा फंक्शन नहीं होता इनमें, नो डायरेक्ट कोडिंग, बट दे शेड लाइट ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, डायनेमिक एंड एवोल्यूशन। लेकिन हाँ, ये हमारे क्रोमोसोम स्ट्रक्चर या डायनेमिक में हमें हेल्प करने में फाइंड करने में हेल्प करते हैं। ओके, सो क्रोमोसोम नंबर 1 हैज़ मोस्ट जीन 2968। तो हमारा जो क्रोमोसोम नंबर 1 है उसमें सबसे ज़्यादा जीन्स हैं, वो कितनी है, उनका नंबर क्या है, 2968। एंड वाई का लीस्ट है, फ्यूएस्ट है 231। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये तो पूछ लिया, ये पूछ सकते हैं विविध, मतलब अब तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन किसी स्टेटमेंट में आ जाए, वी वाई हैज़ फ्यूएस्ट नंबर ऑफ जीन्स ऑन द क्रोमोसोम, एंड वो नंबर क्या है 231, तो ये भी अच्छा है, राइट। Scientists have identified about 1.4 billion location where single base DNA differences. Basically क्या होता है ना, जो हमारे 1.4 मिलियन बेस पेयर्स है उनमें कोई किसी सिंगल बेस पेयर में अगर मुटेशन आ जाए, उसको कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, वेरिएशन। किसी सिंगल न्यूक्लियोटाइड में वेरिएशन आ जाना, डीएनए डिफरेंसेस आ जाना, पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको हम SNPs कहते हैं, दैट occur in human. This information provides to evolution process of finding chromosome location for disease sequence and tracing human history. इससे हम ह्यूमन हिस्ट्री पता लगा सकते हैं, डिजीज हिस्ट्री पता कर सकते हैं, सीक्वेंसेस पता कर सकते हैं। तो यस, ये इसकी इम्पोर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following statement is correct for the location of male frog compulsory pad? तो जो मेल का जो पैड होता है, कॉपुलेटरी पैड है, वो कहाँ है, मतलब उसकी लोकेशन पूछी है कॉपुलेटरी पैड की, मेल की। तो फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट ऑफ फॉर लिम्ब, फर्स्ट डिजिट ऑफ हाइंड लिम्ब, सेकंड डिजिट ऑफ फॉर लिम्ब, फर्स्ट डिजिट ऑफ फॉर लिम्ब। तो इसका आंसर है फोर्थ, फर्स्ट डिजिट ऑफ फॉरलिंग में प्रेजेंट होता है। हम देख लेते हैं। यस, मेल फ्रॉग्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैग। तो एक तो उनके मेल फ्रॉग में क्या डिफरेंस है, भी उनका वोकल साउंड, इसमें मतलब डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम। और उसका जो कॉपुलेटरी पैड है वो फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब में प्रेजेंट है, जो कि एब्सेंट है इन दी फीमेल फ्रॉग। तो बेसिकली डिफरेंस है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेल फ्रॉग एंड फीमेल फ्रॉग। एक तो इनको वोकल जो साउंड है उसमें डिफरेंस है, और दूसरा कॉपुलेटरी पैड है वो फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब पे प्रेजेंट है, जो कि एब्सेंट है फीमेल में। और ये फाइटो हार्मोन का फंक्शन पूछा गया है, इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, फाइटो हार्मोन प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, हेल्प इन द डिले ऑफ लीव सेनेसेंस इन प्लांट। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है, जो लीव सेनेसेंस को डिले करे? इथाइलिन, जिब्रालिन, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन। तो इसका आंसर है साइटोकाइनिन। इसको बेसिकली साइटोकाइनिन क्या है, लीव सेनेसेंस को डिले करता है। 1 सेकेंड, चलो देख लेते हैं। साइटोकाइनिन हैव स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन साइटोकाइनेसिस एंड वर डिस्कवर्ड एज काइनेटिन, जो कि एक सिंथेटिक साइटोकाइनिन है, काइनेटिन। ये एडेनिन का बना है, जो कि एक प्रोटीन है, एंड इट इज़ फाउंड इन दिस फॉर्म ऑफ डीएनए। ऑटोक्लेव में देखा गया, मतलब ऑटोक्लेव करके उसको स्पर्म में डीएनए देखा। ओके,
कैनेटिंग डज नॉट ऑकर नेचुरली इन प्लांट। ये जो है मैंने बताया ना, ये सिंथेटिक है, ये प्लांट में नेचुरली नहीं है। सर्च फॉर नेचुरल सब्सटेंस विद साइटोकिनिन लाइक एक्टिविटी लीड टू आइसोलेशन ऑफ जियाटिन फ्रॉम कॉर्न। अगर हम नेचुरल को देखें तो कौन सा है साइटोकिनिन, ये तो सिंथेटिक है कैनेटिन। जियाटिन जो कि मेज से मिलता है, ओके, कॉर्न कर्नल्स मेज से मिलता है ये, कोकोनट मिल्क से भी मिलता है ये zeatin. Since the discovery of zeatin, natural occurring cytokinin, some synthetic compound with cell division promote activity. Basically cytokinin क्या है ना, cytokinesis, ये cell division activities को promote करता है, right? एंड नेचुरल साइटोकिनिन एस्टैब्लिश इन वेयर रैपिड सेल डिवीज़न। और ये कहाँ पाया जाता है, जहाँ जहाँ पे सेल डिवीज़न होगी, रैपिड सेल डिवीज़न होगी। एंड रूट पाइसिस में, शूट बर्ड्स में, यंग फ्रूट्स में, तो ये यंग फ्रूट्स, शूट रूट पाइसिस, शूट बर्ड्स में ये पाया जाता है, ओके। साइटोकिनिन हेल्प दी ओवरकम दी एपिकल डोमिनेंस। तो ये जो ऑक्सिन होता है वो तो एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है, अभी लेटरल बर्ड को ग्रो नहीं होने देता, सिर्फ टिप वाला बर्ड ही ग्रो करेगा, ये एपिकल डोमिनेंस होता है जो कि ऑक्सिन करता है। लेकिन साइटोकिनिन अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो वो क्या करेगा, लेटरल बर्ड को भी ग्रो करने देगा। तो ये इसके कहते हैं ओवरकम दी एपिकल डोमिनेंस, ओके। दे प्रमोट न्यूट्रिएंट बबलाइजेशन हेल्प इन द डिले ऑफ लीफ सेनेसन। तो ये है, इन्होंने यहीं से पाया है कि लीफ सेनेसन को डिले करता है ये, ओटे ओटे, ओके। While trying to find out the characteristics of a newly found animal, a researcher did the activity. He observed that the body cavity with the presence of mesodermal tissue towards the body wall, but no mesodermal tissue observed during the alimentary canal. तो ये पूछ रहे हैं, ये करेक्टर है किसी एनिमल में पाया गया रिसर्च के दौरान, तो क्या है इनमें से, ये कौन सी है, ये सिलोमेट है, साइजोसिलोमेट है, सूडोसिलोमेट है कि स्पोंजोसिलोमेट है। तो ये सूडोसिलोमेट है। ये सिलोमेट तक सिलोमेट जो एब्सेंट हो, राइट। और सीडोसिलोमेट क्या होता है, बेसिकली भी जो इनकी गट लाइनिंग है ना, वो उसमें मेसोडर्म लाइन नहीं करती है, तो ये सीडोसिलोमेट है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा हेड है उसमें होता है जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस होता है ना हेड में, तो उसमें जेनेटिक मटेरियल आएगा। मिडल पीस में इसमें हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होती है, तो इसमें एनर्जी आ गई। एक्रोसोम में एंजाइम्स होती हैं। टेल दैट हेल्प्स इन स्पर्म मोटिलिटी, तो क्या आ जाएगा इसका हेड में, 4, ए का 4, बी का 3, सी का 1, तो ये फर्स्ट ही है, ठीक है। हम एक बार देख लेते हैं। ये सिलोम है, ये हमारे ये सिलोम, ये सीडोसोलोमेट है, और ये ए सिलोमेट है, सिलोमेट एब्सेंट। सो बेसिकली द बॉडी कैविटी विच इज़ लाइंड बाय मेसोडर्म। सिलोम क्या है, बॉडी की कैविटी जो मेसोडर्म से लाइन करती है, दैट इज़ अ सिलोम। एनिमल्स पोजेसिंग सिलोम आर कॉल्ड अ सिलोमेट। जिस एनिमल में सिलोम हो उसको सिलोमेट्स, जैसे एनालिड्स, मलस्क, आर्थ्रोपोड, अकाइनोडर्म, हेमिकोडेट, कोडेट्स, तो ये होते हैं। इन सम एनिमल द बॉडी कैविटी इज़ नॉट लाइन बाय मेसोडर्म। तो कहते हैं कुछ एनिमल्स में बॉडी कैविटी क्या है, मेसोडर्म से लाइन नहीं करती, तो वो कौन आ जाता है, मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज अ स्कैटर्ड पाउच इन बिटवीन द एक्टोडर्म एक्टोडर्म। मतलब एक्टोडर्म के एंडोडर्म के बिचाले तो प्रेजेंट है एज अ स्कैटर्ड पाउच, लेकिन वो बॉडी कैविटी को लाइन नहीं करती, तो इसको सीडोसिलोम कहते हैं। और जो एनिमल में हो सीडोसिलोमेट्स, इसकी एग्जांपल है एसके हेलिमेंथ, ठीक है। एंड जिसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट हो, एसिलोमेट, प्लेटी हेलिमेंथ इसकी एग्जांपल है। ये हमारे ये स्पर्म के पार्ट्स हैं, हेड, नेक, मिडल पीस, टेल। जो हमारा हेड है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है इलोंगेटेड, और एक्रोसोम है जो कि इंटीरियर में कैप लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें एंजाइम है। मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाएगा। टेल है वो क्या है, स्पर्म मोटिलिटी के लिए हेल्प करती है टू फर्टिलाइजेशन। तो ये सब दिया हुआ है, ठीक है, ओके। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्टेजेस दिए हैं, गिवन बिलो आर द स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट।
करेक्ट सीक्वेंस बताना है, ठीक है। करेक्ट सीक्वेंस क्या है? प्रोथेलस, मियोसिस इन स्पर्म मदर सेल, फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ आर्किगोनिया एंथ्रीडिया, ट्रांसफर ऑफ एंथेरोजोइड टू आर्किगोनिया प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो क्या होगा? सबसे पहले तो मियोसिस इन स्पर्म मदर सेल होगा, क्योंकि स्पर्म मदर सेल मियोसिस करके गमीट्स बनाएंगे, राइट। तो सबसे पहले तो मियोसिस ही होगी, मियोसिस। फिर उससे हमारा थैलोफाइट बनेगा, गमीटोफाइट, थैलोफाइट, दैट इज़ अ प्रोथैलस, राइट। तो बी के बाद ए, ये हमारे फर्स्ट ये गया तो हमारा 2 रह गई, राइट। फिर क्या होगा? इसके बाद हमारे गमीट्स बनेंगे, तो फॉर्मेशन ऑफ आर्किगोनिया एंथ्रीडिया, गमीटोफाइट, BAD। तो हमारा ये ऑप्शन आ गया। फिर इसके बाद क्या होगा? एंथ्रीडिया क्या है? वाटर के थ्रू आर्किगोनिया के पास जाएगा, E। फिर एक की फर्टिलाइजेशन होगी, C। तो ये ऑप्शन आ गया। बस इसमें यही दिया हुआ है, जैसे रुको, ये देखो मियोसिस होगी, इससे क्या है? स्पोर बनेंगे मियोसिस से, राइट। स्पोर प्रोड्यूस होंगे। फिर क्या हमारा थैलोइड गमीटोफाइट बनेगा, प्रोथैलस, जो कि फ्री लिविंग मल्टीसेलुलर है, राइट। फिर इससे क्या होगा? हमारे गमीटोफाइट्स बनेंगे, एंथ्रीडी, आर्किगोनिया। फिर ट्रांसफ़र होगा मेल टू आर्किगोनियम, राइट, फॉर फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये है बस, ठीक है। Okay, so yeah, this is for all. If you have any doubt, comment below. Thank you.